Hello everyone. This is my second video on emotional intelligence, which is in continuation with the first video which I posted. The first video was about a basic introduction of what emotional intelligence is, and I explained it with an example that at a particular situation, अलग-अलग लोग अलग-अलग emotion show करते हैं, right? So the first slide which is there, it is the basic definition of emotional intelligence, which was given by Peter Selvoy and John Mayer. That is, emotional intelligence क्या है? It is an ability to understand emotion, to use emotion, to understand somebody else's emotion and yours emotion as well, and to manage them. This is the definition which was given by Peter Selvoy and John Mayer. All right. Next is, so if we are talking about emotional intelligence, तो कुछ लोग होते होंगे जो emotionally बहुत strong होते होंगे, emotionally बहुत intelligent होते होंगे. वही कुछ लोग होते होंगे जो इमोशनली इतने इंटेलिजेंट, इतने नॉलेजेबल नहीं होते होंगे, राइट? सो वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रेट्स ऑफ इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल, कि उनके क्वालिटीज क्या होती हैं, कौन से लोग इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो क्या काम इजीली कर पाते हैं. फर्स्ट इज हैंडल कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस. जो इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल होते हैं उन्हें कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को हैंडल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती. कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस जैसे कि अगर आपकी टीम में लोग वेल बिहेव नहीं कर रहे हैं, या आपकी टीम के जो लोग हैं वो एक दूसरे को ढंग से समझ नहीं रहे हैं, अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पा रहे हैं, या मोटिवेटेड नहीं रहते हैं पूरा टाइम, देन यू आर द पर्सन हु कैन अंडरस्टैंड and you can devise a proper method in such situations, that how you are going to handle that particular situation, right? Second is express themselves. What is express themselves mean? What does it mean? It means that if you are emotionally intelligent, then you are able to express the correct emotion at the right time with the right person, right? So अगर आप emotionally intelligent हैं तो आप अपने emotions को सही जगह पर, सही व्यक्ति के साथ, सही डिग्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, right? थर्ड इज के गेन रेस्पेक्ट. अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट है तो आप सामने वाले की रेस्पेक्ट गेन करने में आपको डिफिकल्टी नहीं होती. ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इन सिचुएशन में होता है जब आप ऐसी ट्रबलसम सिचुएशन में होते हो कि सपोज आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्योस हो गया. क्योस मीन्स लड़ाई हो गई, लेबर के साथ आप डील कर रहे हो, जिसके घर में कुछ प्रॉब्लम है, राइट? तो वो काम पर नहीं आ रहा है. तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे? आप उसको निकाल दोगे क्या जॉब से? नो. यू कैन गिव देम अ सर्टेन टाइम, अ सर्टेन मेथड. आप उसको कुछ एडवाइस कर सकते हो, उसकी कुछ हेल्प कर सकते हो, ठीक है? उसको कुछ तरीका बता सकते हो कि जिससे उसका काम और उसका घर दोनों चीजों पर अफेक्ट ना पड़े. तो ऐसे में आपका जो लेबर है, आपका जो सबॉर्डिनेट है, आपकी रेस्पेक्ट करने लगता है. Next is able to influence other. Able to influence other means that in certain complex situations, what happens is when you are able to take the decision properly, having the correct set of emotion, then you are able to persuade other. You are able to influence them. They take you as a role model of them, right? And next is they get help from others. Obviously, if you are emotionally strong, if you are emotionally supportive to others also, then when you need someone, when you need their help, they will always be there. They stay cool. Stay cool means that in different situations also, they do not take any step, any action, any decision in a haphazard way. They do not take any action without understanding the consequences of it, right? Then next is recognize their own emotional reaction. वो अपने emotional reactions भी समझते हैं, and they always say the right thing, and they are always motivated to help themselves and to help others, and they being positive,
they always have an upper hand while negotiation means जब आप किसी के साथ किसी पॉइंट पर आप उससे नेगोशिएट करते हो, उसको अपना पॉइंट समझाते हो, आप उसका पॉइंट समझते हो, तो आप एक मिडिल रास्ता निकालते हो जो कि एक विन विन सिचुएशन होती है दोनों ही पार्टीज के लिए। तो इमोशनली इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं नेगोशिएशन और विन विन सिचुएशंस को डील करना, विन विन सिचुएशंस में काम करना अच्छे से कर पाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है कि अगर एक होटल रिसेप्शनिस्ट के आप किसी होटल में जाते हैं, वहां पर एक होटल रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई है जो आपसे आपकी डिटेल्स फिल करने को कहती है, आप वो डिटेल्स भी फिल करते हैं, बट सडनली क्या होता है, वहां पर आपके साथ आपकी फैमिली है, तो आपका कोई छोटा बच्चा है वो रोने लगता है, तो ऐसे में आप अपने छोटे बच्चे को ध्यान दोगे या आप वो रिसेप्शन पे जो फॉर्म लिखा रखा हुआ है उसको फिल करोगे? क्या करोगे आप ऐसी सिचुएशन में? जो एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन होगा वो क्या करेगा? अगर आप वो फॉर्म फिल कर रहे हो एंड बीइंग इमोशनली इंटेलिजेंट यू विल बी able to ask the receptionist to help you, and similar ways receptionist will help you being emotionally capable enough to understand the complexity of situation, right? So emotional intelligent people are always have decision making power, they always have a stand for what they say, they do not manipulate people, they do not overreact in certain situation, they know how to handle complex situation and even a normal situation, right? Okay, so the next is traits of emotionally unintelligent people. Emotionally unintelligent means those people who do not have control on their emotions. गलत वक्त पर गलत इमोशन शो करना, ज्यादा ओवर रिएक्ट करना, तो ये सब क्या है? इमोशनली अनइंटेलिजेंट पीपल के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड ऑल द ट्रेट्स वन बाय वन। वन इज डोंट अंडरस्टैंड हाउ अदर फील्स। सी फीलिंग जो है ना, बहुत ही एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होता है कि आप अपनी फीलिंग्स को कभी मेजर नहीं कर सकते, सामने वाले की फीलिंग्स को भी मेजर नहीं कर सकते, बट हाँ आप समझ सकते हैं कि अगर मैंने किसी से गलत तरीके से बात करी, किसी को कुछ गलत बोला, तो उस पर उसका असर क्या पड़ेगा, राइट? तो दे डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ अदर्स फील। आप किसी से कुछ भी गलत बोल दीजिए, गलत तरीके से बात कर लीजिए, तो आपको क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ता कि सामने वाले को फील क्या हो रहा है, राइट? नेक्स्ट इज डोंट मैनेज अदर्स फीलिंग्स। इट मीन्स कि दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि सामने वाले की फीलिंग्स को मैनेज कैसे करना है। सामने वाला अगर रोए जा रहा है आपके सामने, तो आप क्या करोगे? आप भी उसके सामने रोने लगोगे? नहीं, आपको उसको उसकी नेगेटिविटी में, उसके आसपास जो खराब माहौल है उसमें उसको एक पॉजिटिविटी की जो होप होती है वो देनी होती है। आपको उसको समझाना होता है कि चीजें इतनी खराब, इतनी वर्स्ट नहीं है, स्टिल देयर इज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, आपको रोने की जरूरत नहीं है, हम साथ में हैं, मिलके काम करते हैं, राइट? तो आप दूसरे के इमोशंस को भी मैनेज कर सकते हैं, आप उसको ठंडा कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। आपको उसको, अगर सामने वाला गुस्सा है तो क्या आप उसको गुस्सा ही करते जाओगे? नहीं, आप ऐसे स्टेप्स लोगे, ऐसे एक्शंस लोगे जो सामने वाले का गुस्सा कम हो। नेक्स्ट इज सेल्फ सेंटर्ड। इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल, अनइंटेलिजेंट पीपल कैसे होते हैं? वो सेल्फ सेंटर्ड, हमेशा सेल्फ ऑब्सेस्ड, खुद के बारे में सोचने वाले, और दे लूज कंट्रोल ऑफ इमोशंस। उनका तुरंत अपने इमोशंस पर कोई भी कंट्रोल नहीं रहता, वो हमेशा अपने इमोशंस में बह जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज डू नॉट नो द कनेक्शन बिटवीन इमोशन, थॉट एंड बिहेवियर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इमोशनली अनइंटेलिजेंट पीपल कैसे होते हैं? उनको इमोशंस, यानी कि आप कैसा फील कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, और फाइनली कैसा रिएक्ट कर रहे हो, कैसा बिहेव कर रहे हो, इन सब में उन्हें फर्क ही नहीं पता होता है, ठीक है? नेक्स्ट इज दे डू नॉट बिलीव इन मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स। अगर आप सामने वाले के इमोशंस की कदर नहीं करते, तो ऑब्वियसली आप अपने रिलेशंस को मेंटेन करने में बहुत ही पुअर हैं, एंड दैट इज व्हाई
आप लोगों के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं बना पाते, आप लोग ज्यादा मटीरियलिस्टिक चीजें सोचते हैं इफ यू आर अनइंटेलिजेंट। नेक्स्ट इज हमेशा खुद को ओवर एस्टिमेटेड फील करते हैं, ओवर लोगों से ढंग से बात नहीं करना, अपनी ही धुन में रहना, अपने आप को ही तवज्जो देना, ये इमोशनली अनइंटेलिजेंट पीपल की क्वालिटीज होती हैं। They have very poor problem solving skills. Why? Because they only consider their priorities. They only consider what they feel is correct. They do not understand how the other person is going to feel. All right. Next is overly aggressive in communication. It means that they do not listen or they do not give weightage to what other people opinion are. लोगों के अलग अलग क्या ओपिनियन हो सकते हैं, लोगों की अलग अलग सोच क्या हो सकती है, इसको वो कुछ भी वैल्यू नहीं करते हैं। एंड दैट इज व्हाई दे डू नॉट फील हैप्पी इन लाइफ। दे आर ऑलवेज क्रिटिसाइज्ड बाय अदर्स, दे आर ऑलवेज हेटेड बाय अदर्स। So that is why they are not happy, because they are not respected well enough in life, and thus their life become purposeful. ठीक है? And thus their life is not at all purposeful. That is a purposeless life. उनकी जिंदगी का कोई भी उद्देश्य नहीं रह जाता है, just because के गुस्सा, खुशी, सैडनेस इतना ओवरबर्डन्ड होता है उनका दिमाग इन चीजों से कि वो और कुछ अपनी जिंदगी में सोच ही नहीं पाते, अपने करियर को एक सही शेप, एक सही अलाइनमेंट नहीं दे पाते। I hope now you are able to understand the basic difference between the characteristic of emotionally intelligent and unintelligent people. Now the assignment for this class is that you have to define under what certain conditions you feel that you are emotionally intelligent, while in what certain condition you feel that you are little unintelligent in terms of emotions. All right. Thank you. Bye-bye.